Hello student, a very lovely good morning. Today I will going to discuss about a very important topic of the neural control and coordination. The topic name is the type of neuron, and on the basis of the neuron will divided in many types. First is apolar neuron, second is unipolar neuron, third is pseudo unipolar neuron, next is bipolar neuron, and last is a multipolar neuron. That type of neuron found in the different stage or different animals. The apolar neuron found in the coeluroids and hydra. Then the unipolar neuron found in the embryonic stage of the vertebrate and some of the invertebrate. But pseudo unipolar neuron also found in the dorsal root ganglia of the spinal cord, and the bipolar neuron found in the eye retina and olfactory epithelium of the nasal chamber. Then the multipolar neuron found in the most of neuron are multipolar type of neuron, but the cerebral cortex is a best example of the multipolar neuron. So that type of neuron found in our body and different animals. तो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर बच्चों आज हम करेंगे कि न्यूरॉन वास्तव में किस प्रकार से यहाँ पर इस पर डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे ही हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ द न्यूरॉन divided into two portions, two parts. First is a medullated neuron, then second is a non-medullated neuron. When the myelin sheath surround to the axon or axolemma, that is called medullated neuron, or when the myelin sheath are absent in the neuron or axon, that is called non-myelinated neuron. So that type of neuron on the basis of the presence and absence of the myelin sheath. And third type of neuron, according to conduction of the impulse in the neuron, that is the neuron divided into three portions. First is sensory neuron, second is motor neuron, third is interneuron or mixed neuron. Sensory neuron meaning when the impulse travel from the target organ, from the sensory organ to the brain, that is called sensory neuron. Then the impulse travel in the neuron from the brain to the effector organ or visceral organ, that is called the motor neuron. And the interneuron, small size of neuron which is found in the brain and which are connected to the both neuron, sensory neuron and motor neuron, and function as a both type of neuron, sensory neuron and motor neuron, that is called the interneuron or mixed type of neuron. Most of neuron in our body are mixed type of neuron, like sensory neuron. Sensory nerve are a mixed type of nerve, but the cranial nerve is a sensory and motor both type of neuron found in the brain according to origin. So that type of neuron बच्चों आप आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डिफरेंट पार्ट के अंदर. तो सिनेरियो जस्ट मैंने समराइज रूप में आपको इस चीज को बताने का प्रयास किया है. आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूरॉन. देन आइए हम देखिएगा किस प्रकार से हम यहाँ पर अपने एक स्लाइड के द्वारा आपको बताएं कि आपके सामने क्या मैटर लिया गया है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूराइड्स, अकॉर्डिंग टू डेंड्रॉन, अकॉर्डिंग टू axon that are presence and absence in the neuron divided in many parts, many types. First is apolar neuron. The apolar neuron, also known as a non-polar neuron, that type question can be asked in the examination, in the NEET examination. The non-polar neuron found in that is a first evolutionary neuron. First time neuron develop in which type of neuron? So that is called the non-polar neuron or apolar neuron are first neuron of the animal being. तो which example? तो आंसर होगा यहाँ पर coeluroid, और best example of the coeluroid is hydra. Hydra has what type of neuron? The non-polar type of neuron found in the hydra. So that is a very
मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरॉन। ये क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों कई बार पूछा गया है नीट के अंदर, या कि एपोलर न्यूरॉन है वो किसके अंदर होता है, या एपोलर न्यूरॉन मीनिंग क्या है, व्हेन द एब्सेंट ऑफ द डेंड्रॉन एंड एक्सॉन बोथ टाइप ऑफ neurites in the neuron, that is called apolar neuron. That type of neuron form a special type of nervous system that is called a diffused type of nervous system. Diffused type nervous system have, तो आंसर हो गया यहाँ पर स्लेंड्रेट और हाइड्रा Aurelia, that is an example of the diffused type of nervous system which are formed by the apolar neuron or non-polar neuron. ओके बच्चों, ये बात आप क्रिस्टल क्लियर समझ गए होंगे यहाँ पर कि यहाँ क्या कह रहा है, नो डेफिनेट डेंड्रॉन और एक्सॉन, ये दोनों ही यहाँ पर नहीं होते बच्चों। द सेल प्रोसेस आर आइदर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट आर। सेल प्रोसेस का मीनिंग यहाँ पर कि ये जैसे न्यूरॉन है इसके ऊपर इस प्रकार से प्रोसेस की बात कर रहा है, यहाँ पर साइटोन जो बॉडी प्रेजेंट होती है और इस साइटोन के ऊपर ये सेल प्रोसेस है वो प्रेजेंट भी हो सकती है और आइदर एब्सेंट भी हो सकती है, इसको हम कहते हैं सेल प्रोसेस। तो इस टाइप की एक यहाँ जनरली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कहेंगे एपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। देन नॉट डिफरेंशिएटेड इन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, नर्व्स इंपल्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर तो इसलिए क्या होगा, नर्व इंपल्स क्या है, सभी डायरेक्शन के अंदर है, वो यहाँ पर रेडिएट होगी, यहाँ मूवमेंट करेगी यहाँ पर। तो ऐसे नर्व सिस्टम को हम कहेंगे डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्व सिस्टम। डिफ्यूज्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चों कि डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है वो किसके अंदर बनता है, किस प्रकार का न्यूरॉन बनाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर एपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम यहाँ पर बनाता है। ऐसे नर्वस सिस्टम को डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम बच्चों कहते हैं। देन द एग्जांपल ऑफ द एपोलर न्यूरॉन, बेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रा। और ग्रुप की बात करें तो हम कह सकते हैं नाइडेरिया के जो एनिमल है उसके अंदर इसी प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। नाइडेरिया में मेनी एनिमल्स यहाँ पर आते हैं, ओबिलिया भी इसी का एनिमल है, ओरिलिया भी इसी का एनिमल है। तो यहाँ एग्जांपल ऑफ द हाइड्रा कह सकते हैं। एंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज फाउंड इन द रेटिना, what is the name of the cell? Amacrine cell is a modification of the cell, that type of cell known as the non-polar neuron which is found in the eye retina. ओके बच्चों, आई रेटिना के अंदर एक न्यूरॉन तो होता है बाइपोलर टाइप का न्यूरॉन, सेकंड यहाँ पर होता है एपोलर टाइप का न्यूरॉन, और यहाँ पर एक न्यूरॉन और भी होता है जो थर्ड ऑर्डर का न्यूरॉन है, उसे हम कहेंगे यहाँ पर मल्टीपोलर टाइप का न्यूरॉन। यहाँ तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बच्चों पूछा गया है नीट के अंदर कि यहाँ अमेक्राइन सेल इज ए न्यूरॉन सेल, व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन, तो एपोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन। एंड हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन सेल विच इज ऑल्सो फाउंड इन द आई रेटिना। Amacrine cell और horizontal cell both are found in the eye retina. ध्यान रखिए बच्चों, it is very important question. Then next type of neuron, अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरली ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है, that is called cyton part या body cell of the neuron. Then some small processes also found in the neuron, that is called the nodulated nerve fiber, and inside of the cyton found a special fluid that is called cytoplasm, and this cytoplasm is also called the neuroplasm, the non-polar nervous cell of the hydra। इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह इस डायग्रामेटिकली रूप से हम समझ चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट दी एपोलर न्यूरॉन और नॉन पोलर न्यूरॉन विद द एग्जांपल। तो इसे हम यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर बच्चों यहाँ पर समझ चुके हैं। देन सेकेंड इज द सूडो unipolar neuron. What do you mean about this pseudo or unipolar neuron? तो सूडो का मीनिंग बच्चों क्या है यहाँ पर, सूडो का मीनिंग है यहाँ पर कि ये न्यूरॉन है, दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन हैव ओनली वन एक्सॉन,
one axon does not found the dendron. Dendron is absent. Dendron are absent in that type of neuron. Only axon arise from the cytone, arise from the cell body, the both side of the cell body. So it is appearance just like one dendron or one axon, but it does not found of the dendrite part or dendrons. Only axon found in the neuron, and the axon arises from the cytone body. That type of structure also found in the neuron. तो आप देखिएगा यहाँ पर बच्चों, ये क्या है, हमारी यहाँ पर साइटोन बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये साइटोन बॉडी। अब देखिए इस प्रकार से मूव करके दोनों साइड में ऐसे लगता है जैसे कोई एक डेंड्रोन का यहाँ पर प्रोसेस है, दूसरा एक्सोन का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कहेंगे साइटोन, साइटोन कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कहेंगे एक्सोन, और एक्सोन यहाँ पर साइड में यहाँ पर प्रेजेंट है, और दोनों साइड में यहाँ पर एक्सोन ही की ब्रांच प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से लग रहा है जैसे कोई डेंड्रोन भी साथ में प्रेजेंट होती है, बट ये सूडो अपीयरेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे यूनिपोलर है, बट सूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन है। In this type of neuron, the nerve cell has only axon, but a small process developed from axon which act as the dendron. But dendron appearance like a dendron, but does not found of the dendron. The example of that type of neuron, the dorsal root ganglia of the spinal cord. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट हायर लेवल ऑफ द एग्जाम है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, विच एग्जाम्पल ऑफ द विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द न्यूरॉन, द डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ द सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का हम टीएस सेक्शन लेंगे, इस प्रकार से बच्चों हम आगे स्टडी करेंगे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की। तो डोर्सल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, ये डोर्सल साइड है, यहां से आप देखिएगा ये जो न्यूरॉन यहाँ पर है, इस प्रकार से ये न्यूरॉन यहाँ आ रहा है और इस प्रकार से यहाँ बना रहा है। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। ये जो सेंसरी टाइप ऑफ न्यूरॉन है और डोर्सल साइड में ये न्यूरॉन यहाँ बना रहा है, तो इसे आप कहोगे यहाँ विच टाइप ऑफ न्यूरॉन? डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन इज ए सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यू आर क्लियर, अंडरस्टैंड बच्चों। तो इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूरॉन की बात करें, यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूरॉन, यहाँ कलेक्टिवली 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन की एक साथ हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज यूनिपोलर, सेकंड इज बाइपोलर, थर्ड इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ओके, यूनिमस मीनिंग यहाँ पर वन, पोलर मीनिंग यहाँ पर एक्सोन, वन एक्सोन यहाँ पर प्रेजेंट है, कहां से अराइज हो रहा है? फ्रॉम दी साइटोन, बट डेंड्रोन यहाँ पर एब्सेंट है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन। बाई मीन्स 2, तो इसका मीनिंग वन एक्सोन और वन यहाँ पर डेंड्रोन प्रेजेंट है, बोथ आर अराइज फ्रॉम दी साइटोन, दोनों ही साइटोन से अराइज हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड दी बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। इस चीज को बच्चों आप समझ गए होंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन का मीनिंग वन एक्सोन है और मेनी डेंड्रोन है, और many dendron and one axon are arise from the cytone, so that is called multipolar type of neuron। तो ये एक जनरल डेफिनेशन हम बच्चों इस प्रकार से यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन की समझ सकते हैं। यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन है, उसको हम इस प्रकार से, जैसे सपोज ये साइटोन बॉडी है और उससे यहाँ पर एक फाइबर निकल रहा है, ये एक फाइबर यहाँ पर निकल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन कहेंगे। बाइपोलर न्यूरॉन का मीनिंग है ये साइटोन बॉडी है, उसे एक फाइबर इस साइड में, एक फाइबर इस साइड में निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मीनिंग बच्चों यहाँ पर ये साइटोन बॉडी है, ये एक्सोन है, और इस एक्सोन से इस प्रकार से आप कहोगे ये अनेक स्ट्रक्चर निकल रही है यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो यू आर क्लियर, अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूरॉन, you have a good knowledge about the type of the neuron, I hope। तो इस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल हम देखें,
The unipolar neuron single process arise from the cytone. What is name of the single process? One axon. तो ये बच्चों हम बात कर चुके हैं यहाँ पर ओनली सिंगल प्रोसेस है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है और ये भी क्या है एक्सोन की हो रही है और कहां से हो रही है साइटोन से हो रही है तो दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन. द एग्जांपल ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन द नर्वस सिस्टम ऑफ द एम्ब्रियोनिक कंडीशन का नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरॉन का डेवलपमेंट होता है कैसा होता है किस प्रकार का होता है तो आंसर होगा यूनिपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द नर्वस सिस्टम. ओके क्लियर. आगे चलिए कौन सा क्लियर क्रिस्टल क्लियर. तो आगे चलिए हम यहाँ पर bipolar type of neuron that are two type of process arise from the cytone. One axon or one dendron are found in that type of neuron that is called bipolar type of neuron. What is the best example of the bipolar neuron? The bipolar neuron are found in the retina, rod and cone. Retina जो न्यूरॉन है वो किस टाइप के बाइपोलर न्यूरॉन एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आल्सो have which type of neuron so that is a bipolar neuron found in the olfactory epithelium. बच्चों ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर तो एग्जामिनर कैन बी फ्रेम दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि बाइपोलर न्यूरॉन एग्जांपल आर तो आप दे सकते हो यहाँ पर रेटिना इनसाइड ऑफ द रेटिना एंड द olfactory epithelium have bipolar type of neuron. Only one axon and one dendron arise from the cytone. That is called bipolar neuron. The multipolar neuron, it is very important neuron which is found in the entire body, maximum entire our body that have multipolar type of neuron. What do you mean about the multipolar neuron? When the neuron which have one axon and but many dendron or dendrites are found in the neuron arise from the cytone that is called the multipolar neuron. The example of the neuron most of neuron of the vertebrates and the best part of the body the cerebral cortex is formed by the multipolar neuron. Okay, you are clear understand about the type of the neuron on the basis of the neurite on the basis of the dendron and axon. Then next the structurally we can show that the structurally the type of neuron that is called a multipolar type of neuron they have many dendron one axon surrounding by the myelin sheath that is called medullated neuron and the bipolar neuron the one is the cytone from the cytone arises two type of neurites first is axon second is dendrites so this is called the dendrites and this is called the axon. How to identify of the axon and dendrites? The axon and part of the axon have some button-like structure that is called the axonal part, but the dendron does not have any button-like structure, but some small cytoplasmic processes are found in the end of the dendrites. So we can identify of the dendron and the axon, and that type of neuron is called the pseudo-unipolar neuron due to the cytone found in the laterally part of the axon and both side of the cytone the arise one small body like small fiber like structure that is called the axon but appearance just like a dendron but does not found of the dendron that is called the pseudo unipolar neuron. And the unipolar neuron only one branches one fibers one neurites is arise from the cytone cell body that is called unipolar neuron. तो बच्चों ये बातें आपके यहाँ पर समझ में आई होगी. इस प्रकार से हम यहाँ पर चारों न्यूरॉन को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं. You are crystal clear about the diagram and topics. Then next is the neuron on the basis of the function. On the basis of the function, the neuron divided into three parts. First is the sensory neuron. Sensory neuron also known as a afferent neuron. Sensory neuron also known as afferent neuron. Then second is the interneuron or interconnecting neuron. And third type of neuron known as the motor neuron or efferent type of neuron. So that is called
on the function, on the traveling of the impulse in the neuron that are divided into three portions. First is a sensory neuron. What do you mean about the sensory neuron? Sensory neuron meaning when the impulse transport from the sensory organ to CNS, the impulse arises from the sensory organ and transmit and traveling to the CNS, that is called sensory neuron. And sensory neuron also known as a afferent type of neuron. Afferent type of neuron. So that is called sensory neuron or afferent neuron. And the interneuron, it is a small interconnecting neuron of the sensory neuron and a motor neuron. That is called sensory neuron. That is called motor neuron. In between the sensory neuron or a motor neuron is found interneuron, IN for interconnecting neuron. Then the motor neuron or efferent type of neuron. What do you mean about the motor neuron? When the impulse transport from the brain or CNS to the effector, so that type of neuron that known as the motor type of neuron or also known as the effector or efferent type of neuron. On the basis of the function or traveling of the impulse, the neuron divided into three types: sensory neuron, interneuron also known as the mixed type of neuron, and then the motor type of neuron. So you are clear, understand about the type of neuron on the basis of the function. Then next type of neuron हम एक और अलग डिफरेंट स्लाइड से हम देख सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ myelin sheath, the neuron are divided into two portions. First is medullated neuron, second is non-medullated neuron. What do you mean about the medullated or non-medullated neuron? When the myelin sheath is found around the axon, that is called a medullated neuron, and when the myelin sheath, हम कह सकते हैं myelin sheath, generally कह सकते हैं present in the neuron, that is called the medullated neuron, and the myelin sheath is absent. Myelin sheath absent in the neuron, that is called the non-medullated neuron. The myelin sheath is secreted by the Schwann cell and oligodendrocyte. In PNS, the myelin sheath secreted by the Schwann cell. In the CNS, the myelin sheath secreted by the oligodendrocyte. So that type of structure we are already discussed about the structures about the PNS, about the CNS of the Schwann cell and oligodendrocyte cells. तो इसे अब फिर आप बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे. यहाँ non-myelinated neuron does not have myelin sheath, but Schwann cell are also found in that type of neuron, but it does not secrete of the myelin sheath. तो ये बच्चों आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे. यहाँ डायग्रामेटिकली हम देखें यहाँ तो इस प्रकार से आपके पास में मान लो दो न्यूरॉन मैं बना रहा हूँ. यहाँ पर एक न्यूरॉन ये है यहाँ और इस टाइप का न्यूरॉन है और इसके अंदर इस प्रकार से ब्रांच बनाई गई. ये इसका यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ये या आप एक्सोन और डेंड्रोन बना सकते हैं. ये एक्सोन हिलोक है और ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर क्या है, एक्सोन का पार्ट है. दूसरा टाइप का यहाँ पर एक न्यूरॉन और बनाऊंगा इसी टाइप से. यही न्यूरॉन मान लो मैंने यहाँ बनाया
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक और न्यूरॉन बना सकते हो और इसको यहाँ पर टाइप बता सकते हो। ये यहाँ पर डेंड्राइट्स पार्ट है और ये इसका साइटोन पार्ट है। तो ये बच्चों आप यहाँ पर समझ गए होंगे, दो टाइप के मेरे पास में यहाँ पर न्यूरॉन है। दोनों में एक माइलिन युक्त न्यूरॉन है और दूसरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। माइलिन टाइप का जो न्यूरॉन है इसके चारों तरफ आप देखोगे इस प्रकार की एक कवरिंग यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट है। माइलिन टाइप ऑफ न्यूरॉन है जहां पर है, तो इस टाइप की यहाँ पर कवरिंग प्रेजेंट है। इस शीट को हम कहेंगे यहाँ पर माइलिन शीट, माइलिन शीट कहेंगे। यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट है और यहाँ पर स्वान सेल भी प्रेजेंट है। डायरेक्टली बीच बीच में ये माइलिन शीट है बच्चों डिसकंटिन्यूअस है, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर नोड ऑफ रेनिवियर। ऐसे पार्ट को नोड ऑफ रेनिवियर के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहेंगे मेडुलेटेड न्यूरॉन के नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो बच्चों यहाँ पर बात आपकी समझ में आई है। एंड पार्ट ऑफ द एक्सोन है ये, एंड पार्ट जो टर्मिनल एक्सोन के रूप में हम इसे कहेंगे टर्मिनल एक्सोन, टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सोन ये। तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बच्चों आपके सामने मिलेगी। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर मिले तो दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन due to the presence of a myelin sheath which is secreted by the Schwann cell or oligodendrocyte according to Pallas when the found in the CNS the myelin sheath secreted by the oligodendrocyte, when the myelin sheath found in the PNS the myelin sheath secreted by the Schwann cell। तो इसे बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन है जिसके अंदर है यहाँ पर ये डेंड्रॉन पार्ट है इसका, ये इसका यहाँ न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोन पार्ट है। ये बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ एक रोड शेप्ड पार्ट है जिसके एक या एक्सोप्लाज्म कहेंगे, यहाँ एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट है इसके अंदर है। और जो बाहर की मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहेंगे यहाँ। तो इस टाइप का यहाँ डायरेक्ट न्यूरॉन है। एंड द एब्सेंट ऑफ द माइलिन शीथ, द माइलिन शीथ डज नॉट फाउंड अराउंड द एक्सोन, दैट इज कॉल्ड नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन को बच्चों क्या कहेंगे हमें? नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन, NMN, और यहाँ पर मेडुलेटेड न्यूरॉन MN के नाम से इसे जानते हैं, दैट इज कॉल्ड NMN, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो इस टाइप से हम इस न्यूरॉन को बच्चों यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो यू आर क्लियर अंडरस्टैंड, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ द न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। ओके बच्चों, यहाँ तक है बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर, जो भी क्लियर, चॉकलेट क्लियर, सब क्लियर, यहाँ क्लियर है। यहाँ तक आपके ब्रेन में मैं समझ सकता हूँ, होप कर सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह इसे समझ गए होंगे, समझ चुके हैं इसे। और इसका जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चों, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ इसे सॉल्व करोगे। टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ the neuron, what is the structure, what is the structures found in the different part of the neuron, dendron part, cytone part and axon part। ये हम बच्चों यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आगे हम यहाँ पर बात करें कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास में, किस टाइप से हमें इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट बनता है बच्चों, यहाँ पर हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशल सेल है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द ग्लियल सेल और न्यूरोग्लिया। ब्रेन जो है हमारा, सीएनएस जो है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, उसके अंदर द 50% पार्ट ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड ग्लियल सेल और न्यूरोग्लियल सेल। ओके, मोर देन 50% सेल फाउंड ऑफ द ग्लियल सेल। कई बार बच्चों आप देखिएगा हमारे ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटीज आ जाती है। अबनॉर्मलिटीज का मीनिंग है यहाँ पर कई बार ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाते हैं ड्यू टू द हायर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन इन द सेल। सो सम स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूमर फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस टाइप से ये ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि दैट टाइप ऑफ ट्यूमर, दैट टाइप ऑफ नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर
फॉर्म विच टाइप ऑफ सेल? तो आपका आंसर हो गया ग्लाइल सेल। ग्लाइल सेल है ये इस टाइप का ट्यूमर फॉर्म करती है। क्यों? तब हमने बच्चों यहां पर पढ़ा है द नर्वस सेल डज नॉट हैव माइटोटिक डिवीजन कैपेसिटी ड्यू टू absence of the centriole. The centriole found in only embryonic stage. After birth, after adult condition, the centrioles are disappear in the neuron. So the neuron does not divide in the later life of the human being or the animal being. But inside of the neuron, for the packaging of the neuron, some special type of cells also found in the brain CNS, that is called glial cell or neuroglial cell. The neuroglial cell have higher capacity for the division. So after division, the cell will be formed a tumor-like, a node-like structure in the brain, in the CNS, in the spinal cord. कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब आप बच्चों समझ गए होंगे जो नोड बनता है, जो गांठ बनती है ब्रेन के अंदर, वो कौन सी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है? आंसर होगा अपना ग्लियल कोशिका के विभाजन से बनती है। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है। एक न्यूरोसर्जन के पास में एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट की एमआरआई करवाने पर, ब्रेन की एमआरआई करवाने पर पता चलता है कि ब्रेन में मेनी स्मॉल नोड्यूल्स आर फाउंड इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट है। तो व्हाट हैपन अबाउट द नोड्यूल? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन इसमें मिलते हैं। दैट टाइप ऑफ नोड्यूल डेवलप्ड फ्रॉम द नर्वस सेल आफ्टर द डिवीजन। That type of nodule developed from the glial cell after the mitotic capacity, mitotic division. That type of nodule developed from both type of cell. That type of nodule developed from the connective tissue of the cell. तो most probably आंसर क्या होगा इसके अंदर? That type of nodule developed from the glial cell or neuroglial cell after the mitotic division. तो ये बच्चों इस प्रकार से हाइपोथेटिकली या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ग्लियल सेल है, उसके कारण यहाँ पर नोड्यूल बनते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल। क्या काम कर रही है ग्लियल सेल यहाँ पर? तो ग्लियल सेल कई प्रकार की होती है और वेरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर कर रही है। पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर है, और इसके साथ में सीक्रेट कर रही है स्वान सेल जो है या ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, दैट टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। और ये क्या है? ये सीक्रेट करती है माइलिन शीत सीक्रेट कर रही है। इसे हम बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्लियल सेल या प्रेजेंट है। तो न्यूरोग्लियल सेल, दीज आर सपोर्टिंग सेल विच फॉर्म ए पैकेजिंग सब्सटेंसेज अराउंड द न्यूरॉन। दीज आर ऑफ द 3 टाइप्स। तो न्यूरॉन के अराउंडिंग यहां पर प्रेजेंट है और एक पैकेजिंग है, फॉर्म करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जैसे मान लो ये हमारे पास में सपोज करो ये न्यूरॉन है, यहां ये हमारे पास में एक न्यूरॉन है। इसी प्रकार से हमारे पास में ये दूसरा न्यूरॉन यहां पर प्रेजेंट है, ये दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार इन दोनों न्यूरॉन को पैकेज करने का काम है। वो कोई न कोई स्पेशल प्रकार की सेल है, जैसे मान लो ये सेल है यहाँ, इस प्रकार से दोनों को इस प्रकार कवर किए हुए रखती है, ऐसे कवर किए हुए रखती है। ये एक सेल है जिसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल विच इज फाउंड इन दी CNS यहाँ प्रेजेंट है। और साथ में क्या है, यहाँ पर स्वान सेल है, उसका सीक्रेशन भी। स्वान सेल इसकी जो है, सॉरी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, वो माइलिन शीत का सीक्रेशन भी यहाँ पर कर रही है। तो इस टाइप से यहाँ जो ये जो सेल है वो सेल क्या फॉर्म कर रही है? पैकेज करने का काम
यहाँ नर्वस सिस्टम की पैकिंग करने का काम है। वो नर्वस सिस्टम एक हाईली सेंसिटिव सेल्स है, उसको बिल्कुल या फिक्स करके पैक रखे, किसी प्रकार की उसमें वो टेंशन डेवलप नहीं हो। तो इसके लिए जो सेल्स नेचर ने हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो बनाई है सेकंड टाइप ऑफ सेल, उसको हम न्यूरोग्लियल टाइप ऑफ सेल कहेंगे। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द सेल। इस सेल के अंदर माइटोटिक कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। यहां पर हम कह सकते हैं माइटोटिक डिवीजन है वो यहां पर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर पाया जाता है। इसे आप बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहां पर बन गई है आपकी। देन नेक्स्ट हम कहें यहां the different type of neuroglial cell found in the brain, found in the CNS. First is the astrocyte cell, second is the oligodendrocyte cell, third is the microglial cell or microgliocyte cell. What is the structure of the microglial, astrocyte and oligodendrocyte? Most of neuroglial cell are origin from the mesodermal, embryonic mesodermal ध्यान रखिए, but some are origin from the ectodermal cell. बट मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ सेल ओरिजिनेट फ्रॉम दी मेसोडर्म, बट सम आर ओरिजिन बाय द एक्टोडर्मल, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल। अब यहाँ ओरिजिन के बेस पे देखें तो एस्ट्रोसाइट है वो यहाँ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है यहाँ, बट ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये यहाँ एक्टोडर्मल ओरिजिन है, बट माइक्रोग्लियल सेल है वो ओरिजिन फ्रॉम दी मेसोडर्मल है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट ओरिजिन अपन देख सकते हैं। इसमें बहुत टाइप की सेल्स होती है। हम 3 टाइप की जो न्यूरोग्लियल सेल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, द लार्ज सेल एस्ट्रोसाइट इज ए लार्ज साइज ऑफ सेल, बट नंबर है वो या न्यूमर्स होती हैं इसके, बट प्रोसेसेस है इसके साइड में, प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेसेस का मीनिंग इस प्रकार से ये प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गई यहाँ पर प्रोसेस प्रेजेंट हो गए यहाँ। Then smaller few in processes but smallest with branching। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है यहाँ बच्चों? माइक्रोग्लियोसाइट है। नाम ही माइक्रो दिया है या नेम जो यूज किया गया लेबलिंग माइक्रो, माइक्रो का मीनिंग स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द ब्रेन, सीएनएस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर हुआ। देन नेक्स्ट फंक्शन के बेस पे हम डिफरेंसेस देखें। एस्ट्रोसाइट क्या कर रही है? प्रोवाइड रिपेयर मैकेनिज्म एंड रिप्लेस द डैमेज टिश्यू। ब्रेन के अंदर बच्चों कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाए उसको रिप्लेस करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर एस्ट्रोसाइट कर रही है। इट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी ध्यान रखिएगा, BBB ये कौन बनाता है? एस्ट्रोसाइट सेल बनाती है। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर नीट के अंदर पूछा जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर विच टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल फॉर्म में? तो आंसर आएगा BBB। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। अभी बात करेंगे क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। Then oligodendrocyte cell formation and preservation of the myelin sheath in the CNS. It is very important क्वेश्चन है बच्चों, ये बात हम कर चुके हैं। यहाँ CNS के अंदर कौन कर रहा है? यहाँ ये oligodendrocyte, और PNS होता तो क्या होता? हम कहते हैं स्वान सेल। स्वान सेल है वो यहाँ पर PNS के अंदर माइलिन शीट है वो बना रही है। देन माइक्रोग्लियल सेल, स्कैवेंजर सेल ऑफ द CNS एंड फैगोसाइटिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ब्रेन के अंदर है कोई भी यहाँ पर माइक्रोब एंटर कर जाए बच्चों, माइक्रोब एंटर कर जाए डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, आपको पता है, आपको बताया था कि डिफरेंट यहाँ पर फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट होती है। जैसे लीवर है उसके अंदर कुपर सेल प्रेजेंट होती है, जैसे लंग्स है उसके अंदर डस्ट सेल प्रेजेंट होती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर मास्ट सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो डिफरेंट ऑर्गन है। ऐसे ब्रेन के अंदर माइक्रो ग्लियोसाइट सेल्स है वो इट इज स्कैवेंजर और फैगोसाइटिक इन नेचर ही है। कोई भी माइक्रोब, कोई भी फॉरेन पार्टिकल ब्रेन के अंदर यदि एंटर कर जाए तो इसे डिस्ट्रॉय करने का काम है वो, इस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? तो आंसर होगा यहाँ पर माइक्रोग्लियल सेल है वो यहाँ फैगोसाइटिक नेचर की होने के कारण इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से बच्चों आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूरोग्लियल, सम स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल व्हिच इज फाउंड इन द ब्रेन, फाउंड इन द CNS एंड गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। देन
अब मैंने अभी बताया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ट्रिपल बी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। ब्लड ब्रेन बैरियर, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म बाय द कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल which are coupled by the tight junction with extraordinary high electrical resistance। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है कि इसके अंदर जो कैपिलरीज होती है, उस कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल और यहाँ एस्ट्रोसाइट सेल है, इस प्रकार से चारों तरफ से लिपटी रहती है। ये एस्ट्रोसाइट सेल है, इस प्रकार से लिपटी रहती है चारों तरफ से और ब्लड को बाहर आने से रोकती है। एक ब्रेन के अंदर जो कैविटीज है, ब्रेन की कैविटीज है, वहां पर ब्लड को रिमूव होने से यहाँ पर रोक रही है, उसके डिफ्यूजन को रोक रही है। तो इस प्रकार एक बैरियर बना लिया जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। द एस्ट्रोसाइट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द न्यूरोटॉक्सिक। तो ये क्या स्पेशल इसका फंक्शन क्या है, तो ये बाहर से किसी प्रकार का जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको ब्लड के अंदर एंटर होने से रोकती है। कोई भी न्यूरोटॉक्सिक है उसको यहाँ पर एंटर होने से यहाँ रोक रही है, इसलिए हम कहते हैं ये कि ब्लड ब्रेन बैरियर बना रही है। एक और सुंदर डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप एक एनिमेशन है इसका, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एनिमेशन है। इसके ऊपर देखिएगा, ये एक ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड है कंटिन्यू यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है। ये यहाँ पर देखिए बच्चों सेल है, ये सेल है यहाँ पर, ये सेल एस्ट्रोसाइट है, एक लार्ज साइज में मैंने यहाँ पर दिखाया गया है, जूम किया है, जिसके अंदर कंटिन्यू यहाँ पर क्या है ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखिएगा। और ये सेल है वो दो प्रकार के जंक्शन, एक टाइट जंक्शन और एक गैप जंक्शन है, उसके द्वारा ये सेल यहाँ पर कनेक्टेड है। और उसके साथ में एस्ट्रोसाइट के साथ में पेरिसेम सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल आल्सो सराउंडेड टू द ब्लड कैपिलरीज, एस्ट्रोसाइट एंड पेरिसाइट सेल। अब देखिए ये सेल बच्चों, ये सेल देखिए या ये क्या है, या ये देखो लार्ज सेल, ये क्या है एस्ट्रोसाइट है, इट इज ए लार्जेस्ट सेल। इसके जो प्रोसेसेस है वो यहाँ चारों तरफ से कवर किए हुए रहते हैं और टू द प्रोवाइड क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन ये यहाँ पर इस सेल के अंदर हो रहा है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग है उसके सर्कुलेशन में ये क्या हेल्पफुल है यहाँ। तो ये बच्चों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे यहाँ कि लिपोफिलिसिटी एंड स्मॉलर देन द 500 डाल्टन इवेजन ऑफ द एक्टिव एक्सटेंशन ये। तो दैट टाइप ऑफ एनिमेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनिमेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बीबीबी। ओके, बीबीबी का मीनिंग आप समझ गए होंगे यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है। आगे चले बच्चों हम यहाँ पर देन नेक्स्ट यहाँ एक इंपॉर्टेंट अब पॉइंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर यहां तक का टॉपिक आप समझ गए होंगे, तो आपके आगे के टॉपिक को समझने में बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये गहराई के साथ में, एक डेप्थ के साथ में हम यहाँ पर इस टॉपिक को समझ रहे हैं। यहां तक हमने क्या किया बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड द टाइप ऑफ द न्यूरॉन, व्हाट डू यू मीन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड वेरियस टाइप ऑफ द न्यूरॉन एंड अदर देन द न्यूरॉन विच टाइप ऑफ सेल्स आल्सो फाउंड इन द ब्रेन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ सेल्स। तो ये बात बच्चों यहां तक हमने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर लिया है और आप इसे एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं ये होप कर सकता हूं। ये तो इस प्रकार से इस अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को आगे अपन अध्ययन करें, आगे अपन चले इसकी स्ट्रक्चर को, तो अब और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनने जा रही है। आप देखिए और थोड़ा अंदर एनाटॉमी देखें उस न्यूरॉन की और उसकी और डेप्थ में उसकी फिजियोलॉजी देखें उस न्यूरॉन की, तो एक और ही बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर बनने जा रही है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो वो टॉपिक बनता है अपना बच्चों क्या, नर्व इंपल्स कंडक्शन। व्हाट डू यू मीन अबाउट द नर्व इंपल्स कंडक्शन। अब नर्व इंपल्स कंडक्शन को पढ़ेंगे तो उससे पहले बच्चों हमें कुछ और चीजें पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर नर्व इंपल्स कंडक्शन हम बात कर रहे हैं, इंपल्स कंडक्शन की बात कर रहे हैं, इंपल्स कंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द इंपल्स। इंपल्स है क्या, स्टिमुलाई है क्या। तो इंपल्स और स्टिमुलाई का मीनिंग है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, सम इवेंट आर डेवलप्ड, सम changes are developed, that type of changes received by the receptor and that type of changes also traveling by the neuron, that is called
इम्पल्स। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इम्पल्स कहेंगे। पहली बात ये आप समझ गए होंगे। अब ये इम्पल्स का ट्रेवलिंग कैसे होगी या, तो हम यहाँ पर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन के अंदर हमने बच्चों हमने एक न्यूरॉन देखा। ये सपोज हमारे पास में एक न्यूरॉन है, और कौन सा न्यूरॉन है यहाँ पर, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन है यहाँ। ये नॉन मेडुलेटेड हमारे पास में न्यूरॉन है, ये बात आप समझ चुके होंगे, इस बात को हम पहले कर चुके हैं यहाँ। इस नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन के अंदर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में डेंड्रोन है। डेंड्रोन क्या करते हैं, रिसीविंग ऑफ द इंपल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट एंड ट्रांसमिट टू द साइटोन एंड सेंड टू द साइटोन। ये बात यहां पर हो गई। देन इसके बाद में आप देखिएगा हमारे पास में साइटोन और एक्सोन के जुड़ने का एक स्थान है बच्चों, ये एक हाईली सेंसिटिव प्लेस है, दैट इज कॉल्ड एक्सोन हिलोक। यहां से क्वेश्चन बच्चों यहां पूछा जा सकता है, एक्सोन हिलोक, व्हाट डू यू मीन अबाउट द एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक का क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पर, तो देखिए एक्सोन हिलोक में यहां पर ये क्वेश्चन यहां पूछ सकते हैं, मोस्ट ट्रिगर जो पार्ट है हमारे पास में इंपल्स का ट्रिगर, ओरिजिन ऑफ द इंपल्स हम कह सकते हैं, ओरिजिन ऑफ इंपल्स और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द इंपल्स, मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ इंपल्स। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्सोन हिलोक हमारा मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द इंपल्स है। यहाँ एक्सोन हिलोक का पार्ट है जहां एक्सोन और साइटोन दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, इंपल्स के लिए ट्रिगर करते हैं, इंपल्स के लिए सबसे सेंसिटिव रीजन यहाँ पर है। तो ये एक और क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया। अब देखिए बच्चों, ये जो एरिया है और ये एरिया है हमारा एक्सोन का एरिया है, क्लियर। ये एक्सोन किससे बनी है, ये एक्सोन यहां पर बनी है सेल से बनी है, यहाँ सेल के मॉडिफिकेशन से एक्सोन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ इस सेल में, इस एक्सोलिमा में यहाँ पर बच्चों इसमें वेरियस टाइप ऑफ चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे यहाँ चैनल, या हम कह सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर गेट प्रेजेंट होते हैं। बात मेरी समझना, अब मैं थोड़ा और डेप्थ में जा रहा हूं। The wall of the exolemma have some special type of various type of channels और gate। ये चैनल और गेट क्या करेंगे, ये यहां पर परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे फॉर द आयनिक, आयन को यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करेंगे। ये चैनल क्या करते हैं, आयन को अलाउ करने के लिए, आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलाउ करते हैं। अब आयनिक व्यवस्था और चैनल दो अलग अलग चीज है। सबसे पहले मैं चैनल की बात करूंगा यहाँ, हाउ मेनी टाइप ऑफ चैनल फाउंड इन दी सेल्स। तो देखिए ये चैनल क्यों बने, चैनल इसलिए बने बच्चों कि यहां पर आयन है, बाहर से भीतर है कुछ आयन जा सके, भीतर से बाहर कुछ आयन जा सके। कोई भी सेल है, हम बच्चों कोई भी सेल लें, इसमें एक्साइटिबिलिटी का कैरेक्टर होता है, लेकिन न्यूरॉन में एक्साइटिबिलिटी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। हम ओरिजिन के बेस पे देखें, सेल का ओरिजिन कहां हुआ, सेल का ओरिजिन हुआ सी वाटर के अंदर। हमारा ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन है सी वाटर के अंदर हुआ है। ओके, सी वाटर के अंदर जब सबसे पहले प्रोटीनोइड बने थे, कोएसरवेट्स बने थे, उसके बाद में प्रोकैरियोट्स बने, उसके बाद में यूकैरियोट सेल्स बनी, यूनिसेलुलर बनी। जब कोई यूनिसेलुलर बना है, अब मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं, जब कोई यूनिसेलुलर बना है, एक सेल थी, इस सेल की मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, आउटसाइड ऑफ द सेल है क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बच्चों, आप इवोल्यूशन के साथ में इसको कौन रिलेटेड कीजिएगा। जब कोई सेल बनी है, इस सेल के बाहर की तरफ कैसा वातावरण था, क्योंकि सेल का ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन कहां हुआ है, सी के अंदर हुआ है। ये मैं सी का वातावरण बना रहा हूं, एक मेराइन वातावरण यहां एनवायरमेंट बना रहा हूं। सी के अंदर डेवलपमेंट क्या हुआ, सेल का हुआ। ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस है यहाँ, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्रारंभिक तौर पे, इनिशियल तौर पे जब यूनिसेलुलर प्रोटोजोवन बने थे, उस समय नो फाउंड ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूरॉन, कोई न्यूरॉन नहीं था, एक जनरल सेल का डेवलपमेंट हुआ।
जनरल सेल का डेवलपमेंट हुआ, आउटसाइड ऑफ द सेल, सराउंडिंग ऑफ द सेल फाउंड ए सोल्टी वाटर। सोल्टी वाटर का मीनिंग बच्चों क्या है, NaCl यहां पर प्रेजेंट होता है। इसके चारों तरफ कौन सा पानी प्रेजेंट है, यहां पर नमक युक्त पानी प्रेजेंट है, सॉल्ट युक्त पानी या वाटर प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग यहां NaCl, बाहर की साइड में क्या प्रेजेंट है, यहां पर NaCl है। हायर अमाउंट ऑफ द NaCl है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब इसे हम कह सकते हैं आयनिक कंडीशन में ये सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन के फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है आउटसाइड में। इसलिए सोडियम आयन यहां अधिक होने के कारण आप देखिएगा आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है वो क्या होगी, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहती है। तो इस बात को बच्चों यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम देखें तो ये ग्रेडियंट स्थापित हो जाता है यहां पर। तो इस प्रकार की पोजीशन रहती है ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ द लाइफ पे। बात यहां पर समझ में आ गई। आउटसाइड ऑफ द फ्लूइड or in water which type of ion, which type of salt present, the NaCl salt present found outside of the membrane, so the outer membrane is positive charged। इसलिए बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए बच्चों अंदर की साइड में क्या होगा, यहां पर है कुछ नेगेटिव आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन यहां कम होती हैं, लेकिन नेगेटिव प्रोटीन यहां प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है। और पोटेशियम भी अंदर प्रेजेंट होते हैं ज्यादा, तो इसलिए मेम्ब्रेन क्या होगी, अंदर से नेगेटिव चार्ज रहेगी। इसका कारण क्या होता है आपको, फॉस्फेट आयन और नेगेटिव प्रोटीन इसका रीजन होता है। ये बात आप बच्चों समझ गए होंगे। यहां पर ये एक पोटेंशियल डिफरेंशिएट बना रहता है बच्चों हमारे शरीर के अंदर। इसी थीम के बेस पे जब मल्टी सेलुलर एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, लेबर ऑफ डिवीजन का डेवलपमेंट हुआ, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुई, तो टिश्यू के सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है, कोई भी सेल है, कोई भी टिश्यू है, चाहे वो न्यूरॉन हो चाहे अदर सेल हो, उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसमें कौन सा चार्ज अधिक होगा, पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा। यहां पर उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जब सेल का ओरिजिन हुआ था उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग NaCl यहां पर हायर होंगे, और अंदर की तरफ यहां पर पोटेशियम आयन और फास्फेट आयन और नेगेटिव प्रोटीन है ये हायर होगी। इस प्रकार का एक ग्रेडियंट पोटेंशियल है वो डेवलप होगा। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे अंदर क्या होता है, एक्सोन का डेवलपमेंट होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल। हम इस सेल का हम पार्ट ले, मॉडिफिकेशन आया, न्यूरॉन का डेवलपमेंट हुआ, न्यूरॉन का डेवलपमेंट जैसे ही हुआ तो एक्सोन बना। इसी एक्सोन में क्या है, बाहर की साइड में बच्चों देखिएगा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और इसी में अंदर की साइड में यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से यह पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इस बात को बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां अब क्वेश्चन क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू कंडक्शन ऑफ द इंपल्स जो कंडक्ट हो रहा है, इसके लिए सम आयन कम इनटू द इनर साइड फ्रॉम द आउटर साइड, बट सम आयन कम इनटू द आउटर साइड फ्रॉम द इनर साइड। सो द आयन एक्सचेंज also occur in the axonema membrane due to presence of the some special type of ion channel. The ion channel allow entry of the ion on the one side, not allow the entry of the both side by the single type of channel. You are clear, understand? इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे यहाँ पर। अब यहां बच्चों बात ध्यान रखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर कुछ चैनल्स होते हैं, गेट पाए जाते हैं, गेट का डेवलपमेंट होता है, प्रोटीनस गेट का डेवलपमेंट होता है। प्रोटीनस गेट का डेवलपमेंट क्यों होता है बच्चों, क्योंकि हमारी जो ये मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की होती है, और लिपिड बाइलेयर होते हैं वो आयंस के ट्रांसमिशन को यहां पर बैरियर का काम कर रही है, आयंस को डायरेक्ट एंट्री नहीं करने देंगे। तो इसलिए कुछ प्रोटीन के जो गेट बन गए, प्रोटीन के चैनल है वो नेचर ने बनाए, जिसमें से आयंस है वो यहां पर एक्सचेंज हो सकते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड फ्लो कर सकते हैं। तो ऐसे चैनल को हम यहां पर आयन चैनल कहेंगे। ये आयन चैनल बच्चों कई टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें हम यहां पर कह सकते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ आयन चैनल आर फाउंड इन आवर बॉडी
फर्स्ट इज लीकेज चैनल या लीकी चैनल, लीकी गेटेड चैनल, लीकी गेटेड चैनल कहेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट चैनल है। सेकंड चैनल है नोन एज द ligand gated channel, second type of channel ligand gated channel, it is a very important channel. Third type of channel the mechanical gated channel, बच्चों ध्यान रखिएगा, mechanical gated channel, that is also very important type of channel. Then next is voltage gated channel, ध्यान रखिए बच्चों, ये there are 4 type of mainly channel found in the our body in the different type of cell. First is leaky gated channel, second is ligand gated channel, third is mechanical gated channel, fourth is voltage gated channel. तो बहुत ही फंडामेंटल चीज है ये आपके यदि समझ में आ गया, एनसीईआरटी में इसको डायरेक्ट चैनल वर्ड काम में लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर हाउ मेनी टाइप ऑफ गेटेड चैनल, हाउ मेनी टाइप ऑफ चैनल फाउंड इन दी सेल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द डिफरेंट केमिकल और डिफरेंट आयंस। ओके, अब इस बात को हम कह रहे हैं लीकी गेटेड चैनल, ये फिर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, लीकी गेटेड चैनल, पोटेशियम लीकी गेटेड चैनल, एंड सोडियम लीकी गेटेड चैनल, तो ये फिर यहां पर 2 टाइप के चैनल हो गए, ध्यान रखें, यहां पोटेशियम चैनल और सोडियम चैनल। बोथ आर फाउंड इन दी एक्सोलीमा, एक्सोलीमा के अंदर दोनों टाइप के चैनल होते हैं, यहां पर ये दोनों टाइप के चैनल एक्सोलीमा के अंदर होते हैं, बट द पोटेशियम लीकी चैनल आर मोर देन द सोडियम लीकी चैनल। सो इन द रेस्टिंग स्टेज द एक्सोलीमा इज मोर permeable for the potassium ion compared to the sodium ion, that is line of the NCERT. It is very important line. What you can say, the sodium ion more permeable compared to the sodium ion, potassium ion is more permeable to the compared to the sodium ion due to higher number of the leaky channel, potassium channel found in the exolemma compared to the sodium leaky channel in the resting stage. Permeability का मीनिंग क्या है बच्चों, यहां पर permeability का मीनिंग है कि मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन थी, यहां मैं इसको दूसरे साइड में यहां फिर बना सकता हूं, तो मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट यही बताना चाहूंगा, फिर इसको और डिटेल आगे करेंगे। पहले चैनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लीकी गेटेड चैनल मैंने कहा सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल, ये सोडियम चैनल ये लेस होते हैं, लेस इन नंबर, और पोटेशियम चैनल है ये हायर इन नंबर होती हैं। ओके, ये कहां पाई जाती हैं, एक्सोलीमा की सरफेस के ऊपर पाई जाती है यहाँ। Then second ligand gated channel does not found in the exolemma. Ligand gated channel are found in between the 2 neuron, in between the synapse. For the ligand gated channel, for the connection or the activate by the acetylcholine neurotransmitter. When the acetylcholine are connected with that type of ligand, then open of the channel and sodium ion will come into inside of the cell, inside of the dendron from the outside. That type of channel called is the ligand gated channel. Okay बच्चों, यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होती है, ये साइनेप्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो यहाँ एसिटाइलकोलिन है वो इसके लिए क्या है, एक लिगेंड का काम कर रही है, तो इस टाइप के चैनल को हम कहेंगे लिगेंड गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल गेटेड चैनल? मैकेनिकल गेटेड चैनल many type of stimulus like touch to the body, that type of stimulus, like hearing of the body, hearing of the ear, that type of stimulus open of the mechanical gated channel. How to we are hearing when the sound wave come into the outer ear pinna
through the outer ear pinna auditory canal, the sound ear come into the eardrum, and eardrum will be vibrate through the malleus incus and stapes. The sound wave come into the cochlea through the fenestra ovalis pore, and the sound wave come into the inner part of the cochlea. Then the perilimb and endolimb will be the vibrate. So due to vibration of the perilimb or endolimb, some special type of cell found in the organ of the corti, the organ of the corti will be activated, and inside of the organ of the corti connected with the some auditory type of neuron. Due to the presence of the sound wave, presence of the vibration, the channel of the auditory nerve will be open. That type of channel known as the mechanical gated channels, and we feeling with the hearing. That type of stimulus sent to the brain, and the brain analyzed to the sound. तो इस प्रकार से हम हियरिंग कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग जो आती है उस समय जो चैनल ओपन होते हैं वो मैकेनिकल टाइप ऑफ गेटेड चैनल होंगे यहाँ। तो ये दो चैनल स्पेशल अलग टाइप के चैनल है जो अलग पार्ट में प्रेजेंट है, अलग कंडीशन के अंदर ओपन हो रहे हैं। देन नेक्स्ट इज वोल्टेज गेटेड चैनल। That type of channel found in the membrane of axolemma, and the voltage gated channel also divided into part. First is the potassium voltage gated channel. Second is the sodium voltage gated channel. The potassium and sodium voltage gated channel are open due to potential differences. When the potential differences occur in between the both sides of the membrane, according to requirement, sodium channel will be open. Then higher amount of the sodium come into the cell from the outside, and according to requirement, the potassium channel will be open. Then higher amount of the potassium ion come outside from the inside of the cell. That type of channel is called voltage gated channel. According to potential differences will be open, but the leaky channel of the axolemma always open and close simultaneously or alternative condition. So the potassium and sodium ion, in small amount of the sodium ion and small number of the potassium ion, always move from the inside to outside and outside to inside, and the balancing of the sodium and potassium ion by the special type of the pump that is called the sodium potassium पंप है। तो इस बात को बच्चों आज बहुत अच्छी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इतना ब्यूटीफुल टॉपिक आपको समझाने का प्रयास किया है। हमारी सेल के अंदर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी जो न्यूरोलिमा है, हमारी जो एक्सोप्लाज्मा है, उसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ फाउंड ऑफ द चैनल एंड हाउ टू वर्क ऑफ द चैनल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस, मूवमेंट ऑफ द इंपल्स इन द एक्सोलिमा। तो कैसे ये आगे मूवमेंट करेंगे या इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है, मेम्ब्रेन यहाँ पर रीपोलराइज होगी, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज होगी, यहाँ पर मेम्ब्रेन में रेफ्रैक्टिव पीरियड आएगा यहाँ पर। तो इस समय कैसे ये आयनिक चेंजेस है वो होते हैं, ये सब हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आवश्यकता थी इन चैनल को समझना कि हमारी सेल के अंदर हमारे एक्टोप्लाज्म में किस प्रकार से आयन कम एंड इन एंड आउट एंड इन होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ चैनल, कैसे ये बनते हैं चैनल। सभी चैनल्स है वो प्रोटीनस होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं बच्चों, ध्यान रखिए। और चैनल के द्वारा मूवमेंट ऑफ द आयन हो रहा है वो डिफ्यूजन मेथड से हो रहा है। नो यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी बाय द चैनल ड्यूरिंग मूविंग ऑफ द आयन बाय द चैनल, नो यूज ऑफ द एनर्जी। बट द सोडियम एंड पोटेशियम पंप मूवमेंट कर रहा है तो एनर्जी एटीपी यूज होती है बच्चों। तो इस डिफ्यूजन मेथड और एक्टिव मेथड से कंटिन्यू आयनिक चेंजेज होता रहता है। तो ये बात आप बच्चों बहुत ही अच्छी तरह समझ चुके होंगे।
होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयन चैनल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसे समझने का प्रयास किया है। अब इसकी और डिटेल हम आगे के लेक्चर में यहाँ पर करेंगे। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड, you have a good lecture about the ionic channel and the type of the neuron and that structure of the neuron. Okay, thank you so much.